there is more than the two categories. So we have to go for the ANOVA, analysis of the variance, in the case of the parametric test. So today we'll just check, I will just show you how you can just calculate the ANOVA by using the SPSS in the parametric test. Okay, so in that case, you can see that we have the variable one. You can consider it the variable two or variable three. Three type of the statements are there. Also, you can just also include the demographic variable, gender, marital status, age in years, like that. So in that case, for example, you have the three statement of a particular a variable. So these are the three statement of a variable. So you can also just combine all these three statements. So how you can combine all these statements? You have to go to the transform. You have to go to the transform and then click here compute variable. In the compute variable, you can give the name. For example, you can give the name customer satisfaction, but there should not be any gap like that. Then you have to be just put the statement. If you want to merge the all the three statements related to this variable, the construct and the customer satisfaction. So just select it, drop there S1, then you click on the plus, then S2, then plus, then drop the S3 here and click OK. So when you click, then it already said it has been executed. So you can see that the new variable will be generated here. So the customer satisfaction. So you can give the name here, the customer satisfaction. So you have combined all the statements which is related to this variable. So you can also do the you also combine the statements. Clear? Screen is visible or not? No, sir. No, sir. No, Okay, sir. I'm sharing again. Now, No, sir. No, sir. 1 minute, 1 minute, just want to check. Sir, now visible. Okay. Thank you. So you can just combine the statement. For example, there is another variable which have the 10 statements or the 12 statement or the 5 statements. So you want to add all these statements and want to combine in a particular one variable. So you have to just go this formula like that. I just told you that you have to go to the transform, then compute variable. Then we have give the name without any space, customer satisfaction. Just click here and drop the statement here. Then you have apply plus button. Then the next statement, then drop here, then apply the plus button, then S3, then click here. So drop all the statement here, whatever the statement you have related to that customer satisfaction. And then click OK. We already have this. So don't need to do again. So that the customer satisfaction. So you can just also don't need to just do the coding of that, which already been coded. If you want to just
do the same. So you copy paste the same, it will not affect it. Okay? And you can also just apply the scale. So this the new the variable you have combined all the statement in a one variable. So it will become a one variable customer satisfaction. So how you can just apply the analysis of the variance to check the significant difference within the group or between the groups. Okay? So the variance always be checked within the group or between the groups. So within the groups means there are the, for example, male have the two groups, or you can the male or gender is the two group, male or females, and the between the group means with the gender or the marital status or the customer satisfaction and gender, how it will be different. So in that case, you can apply the ANOVA analysis of variance where where any variable have the more than the two categories. So you have to go to analyze, then you have to go the compare means, then click the one-way ANOVA. Then click the one-way ANOVA. Right? So in that case, you can see there is a dependent list, another is a factor. So in that case, in our current data, we want to check the impact of the demographic variables on the customer satisfaction. So which will be the dependent variable and which will be the independent variable? Tell me. We want to check the impact of the demographic variables on the customer satisfaction. So which will be the dependent variable and which will be the independent variable? Tell me. Customer independent. The customer satisfaction. Mm-hmm. Customer independent and customer independent, demographic dependent. No. No, Wrong. customer satisfaction is dependent and demographic Yes. variables are the independent variables. Because customer satisfaction totally depend on the various demographic variables. Depend on the gender, depend on the marital status, depend on the age group. Different age group have the different satisfaction, different gender have the different satisfaction, different marital status have the different customer the satisfaction. So in the dependent list, we have to drop the customer satisfaction here, because the customer satisfaction have the more than the two categories. In this, we have the more than two categories. One is the, so in that case, we have studied the, if you have the categorical data or continuous data, you can apply the ANOVA. Okay? One side we have the categorical data, that is the gender or the marital. Another side is the interval scale, that is the continuous data. So you can apply the ANOVA. So in that case, here in the factor, you can put the firstly gender. Okay? So one by one we will apply. Then you go to contrast. There no need to do the contrast on that. Then post hoc, you can also apply the post hoc to just check the Tukey or the, you can to this homogeneity. You want, if you want to check the homogeneity, then you can just stick there the Tukey or the LSD, whichever you want to check the homogeneity between the variables. Homogeneity आपको check करनी तो आप ये लगा सकते हो, वरना कोई इसमें hard and fast tool नहीं कि आपको ये लगाने हैं. अगर homogeneity आपको check करनी है तो आप इसमें कर सकते हो. तो ये हमेशा जो significant level 0.05 पे रहेगा हमारा. ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी इसके साथ अगर शो करना चाहते हो टेबल, तो देन यू कैन अप्लाई दैट, अदरवाइज देयर नो नीड टू ऑफ दैट डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी वी ऑलरेडी जस्ट डन इन द लास्ट टेबल्स. तो बिकॉज डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है, यू कैन जस्ट गो टू दैट ऑब्जेक्टिव्स to start your objective by applying the impact or the another methods, or want to check the significant difference between the variables or within the variables. If there is such type of the objective is there, you want to check the significant difference between the variable, then you can apply, go for the ANOVA. Okay, so then bootstrap, they don't need to be do bootstrap. If you want to perform the bootstrapping, you can do it. Otherwise there is no need of that bootstrapping. Then you have to just click on that. Then the ANOVA table will be generated here. So you can see that here the values are given here, the sum of squares, the degree of freedom, the mean squares, and the F test is there. So you can see the significance is the 0.48. So it is more than the 5% level of significance. So it means there is no significant difference between the groups or the within the groups,
between the groups, which you have to take in the customer satisfaction and the gender. So there is no significant difference across the gender regarding the customer satisfaction, because the significance level is more than 0.05. So there is no significant difference. So our null hypothesis has been accepted in that case. So you can also do the next analysis. You want to save that output, you can also save the output. After this generating the old table, you can also save the output. Then you have to go to analyze again, then compare means, go to the VANOVA. Next, at that time we have to be just check the variance between the marital status and the customer satisfaction. So you can drop here the marital status, then okay. In the next, it also showing the non significant because the value is 0.2. So it is more than the 0.05. So you can see it also not showing the significant difference between the all the across the marital status regarding the customer satisfaction कि कोई significant difference नहीं है उसके satisfaction में. जो significant आपका जो age group में across the all the marital से whether the married or unmarried, they are thinking the same. They are not thinking the rationally. They are not thinking different. Their opinion are the same. There is no significant difference between the both. So the null hypothesis has been accepted. In the next case, just go to the analyze. The same. The compare means the one-way ANOVA. The next time you can just drop here the age. Click. So again you can see that is the so ANOVA. So yeah, that's this value is also showing the 0.418. So it's showing that not significant. There is no significant difference across the different age group regarding the customer satisfaction. It means all the persons, all the respondents in all the age groups are having the same level of the satisfaction. They don't have the different type of the satisfactions. So there is no significance. So we can say that null hypothesis has been rejected in that case. So you can just interpret these tables in this way. So this is the way through which you can just analyze the variance between the variables or within the variables. Clear? So you can also do the univariate analysis if you want to do univariate. So univariate in that case, if you have the dependent variable, the random factors, and also the covariates, you could also apply the covariates or the random factor there. So in the fixed case, in that case, I just telling थोड़ा सा briefly मैं बता रहा हूँ. उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट आप करते हैं. यूनिवेरिएट में क्या होता है, जब आपके पास जो एक ही वेरिएबल, एक डिपेंडेंट और फिक्स फैक्टर आपके पास है और एक आपका रैंडम है. रैंडम अगर लगा सकते हो, लगाना चाहो तो. नहीं तो डिपेंडेंट में मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे आप करोगे. डिपेंडेंट में इसको करो आप. ये आपके पास अगर आपके पास जो डिफरेंट एक से ज्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो एक साथ आप कोई फिक्स फैक्टर में कर सकते हो. वहां पे हम अनोवा में 1 बाय 1 फैक्टर कर रहे थे, हम के साथ हम चेक कर रहे थे अनोवा. बट यूनिवेरिएट में क्या है, आपके पास एक से ज्यादा अगर वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उसमें आप एक साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हो. सारे के सारे आप एक साथ यहाँ पे आ जाएंगे. तो ये इसका फायदा है. मॉडल में जाके आप देख सकते हो, फुल फैक्टोरियल करना चाहते हो या बिल्ड टर्म्स करना चाहते हो, तो मोस्टली आप फुल फैक्टोरियल पे हम करते हैं. तो सम ऑफ स्क्वायर कितना करना चाहते हो, 2 या 3, तो सम ऑफ स्क्वायर भी यहाँ देख सकते हो. कितनी बार सम ऑफ स्क्वायर, जितना सम ऑफ स्क्वायर करोगे उतनी वैल्यू इसकी कम आती जाती है. इसमें पोस्टोक लगाना चाहते हो तो पोस्टोक भी लगा सकते हो. इसमें जेंडर मैरिटल स्टेटस पे अगर इसमें कर सकते हो, करना चाहते हो तो LSD कर सकते हो. इसमें टुकी ये दो ही है थोड़ा सा जो फेमस है, जो आपको होमोजेनिटी आपको चेक करते हैं.
ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या होमोजेनिटी, हाँ होमोजेनिटी टेस्ट आप, मैंने कहा था कि यहाँ पे आप कर सकते हो। तो होमोजेनिटी टेस्ट में हमने 2 सिलेक्ट किए थे, 2 टेस्ट में अलग अलग होमोजेनिटी बताएगा। एफ टेस्ट लगाना चाहते हो तो एफ टेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हो इसमें, साथ के साथ अगर एफ टेस्ट आपका चेक करना चाहते हो तो उसमें भी चेक कर सकते हो इसमें एफ टेस्ट। ओके, तो अब देखो ये तो सब्जेक्टिव मींस फैक्टर आ गए कि आपका नंबर ऑफ दो मेल हैं, ये फीमेल कितने हैं, तो ये तो आपका नंबर टोटल बता देगा कितने मेल है कितने फीमेल्स हैं। तो इसमें ये कैटेगरी वाइज आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा। अब एप टेस्ट फिर जो हेटेरोस्केडेसिटी के लिए हमने यहाँ होमोजेनिटी के लिए निकाला था, तो इसमें कह रहा है कि कोई इसमें जो है वो हाइपोथेसिस है, ये नल हाइपोथेसिस को हमने इसमें चेक किया है, तो इसमें इसमें भी ये नॉन सिग्निफिकेंट दिखा रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, हेटेरोजेनिटी इसमें है, होमोजेनिटी नहीं है इतनी ज्यादा। और टेस्ट ऑफ ये वाली दैट इज द टेबल इज द मोर इम्पोर्टेंट, बट इसके अंदर देखो कुछ ना कुछ इसमें पूरा का पूरा ये कैलकुलेट नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें एफ वैल्यू भी सिग्निफिकेंट वैल्यू भी नहीं आ रही है, क्योंकि डाटा हमारे पास एप्रोप्रिएट नहीं है, प्रॉपर नहीं है। फुल डाटा आपके पास होगा पूरा डिटेल में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 का सैंपल है, तो 10 के सैंपल पे ये नहीं पॉसिबल होता है। कम से कम 30 का सैंपल होना चाहिए, 30 या उससे ज्यादा का सैंपल होना चाहिए, फिर आपके पास एफ टेस्ट या सिग्निफिकेंस लेवल भी निकल के आएगा सारा का सारा इसमें। तो इसमें देखो जेंडर और मैरिटल स्टेटस का भी आ जाएगा इसमें। अब इसमें ये देखो जेंडर और मैरिटल स्टेटस का भी इसमें बता देगा आपको कितना सिग्निफिकेंट है या नहीं। एफ की वैल्यू ये यहाँ पे तब आएगी जब आपका डाटा सैंपल साइज आप इंक्रीज करोगे थोड़ा सा। फिर जेंडर और एज के ग्रुप में क्या रिलेशनशिप है, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर मैरिटल स्टेटस और एज इन ईयर, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस और एज इन ईयर तीनों का बता देगा, तीनों के बीच में कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो ये इस तरह से आपका क्रॉस जो एग्जामिनेशन कर सकते हो, या एक चेक कर सकते हो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कितना डिफरेंस है, क्या वेरिएंस है। तो वेरिएंस इसमें चेक कर सकते हो कि आपस में वेरिएबल्स के बिटवीन कितना वेरिएंस है। तो एक साथ इसमें सारा कर सकते हो। इसमें इसका जेंडर का अलग हो गया, मैरिटल स्टेटस का अलग, एज का अलग, फिर जेंडर का मैरिटल का हो गया, जेंडर का एज का हो गया, फिर मैरिटल स्टेटस और एज का हो गया, फिर जेंडर मैरिटल स्टेटस। तो इस तरह से आप इसमें जो यूनिवेरिएट एनालिसिस लगा सकते हो, जब आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक से ज्यादा हो, तो आप इसमें होमोजेनिटी भी आप चेक कर सकते हो। इसमें देखो होमोजेनिटी है नहीं, तो सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 से ज्यादा, तो होमोजेनिटी इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह से अब टेबल निकल के आएगी, ये जो आपकी जो यूनिवेरिएट टेबल है ये वाली। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू भी आ जाएगी, सिग्निफिकेंस वैल्यू भी आ जाएगी। तो इससे आप इंटरप्रेट कर सकते हो जिसमें भी अपना सिग्निफिकेंट लग रहा है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में वेरिएंस है या वेरिएबिलिटी कितनी है, वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे टाइप 3 सम ऑफ स्क्वायर कर सकते हो या टाइप 2 सम ऑफ स्क्वायर कर सकते हो, बट हम टाइप 3 सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं मोस्टली यहाँ पे। तो इस तरह से आप यूनिवेरिएट एनालिसिस भी कर सकते हो और अनोवा भी लगा सकते हो इसके अंदर। अनोवा तब लगाओ जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही है। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया तो आप यूनिवेरिएट एनालिसिस पे चले जाओ। जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत ज्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा है, तब आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे जा सकते हो। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस का मैं कल बताऊंगा कि कैसे आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। कुछ और पूछना है तो बताओ। सर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर बता दीजिए। टाइप 1 टाइप 2 एरर का ये थ्योरेटिकल ज्यादा होगी, वो जब मैं हाइपोथेसिस का करवाऊंगा ना तब बताऊंगा टाइप 1 और टाइप 2 एरर। देखो टाइप 1 एरर में ये है, मान लो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू कितनी है 0.04 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है यहाँ पे क्या होना है, एक्सेप्ट होना है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि 0.05 से ज्यादा है। तो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या होना है यहाँ पे, एक्सेप्ट होना है। और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट है फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो कौन सी होगी, टाइप 1 एरर। कौन सी होगी, टाइप 1 एरर। यहाँ पे सिग्निफिकेंट अगर आए 0.05 से कम है तो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होना है, लेकिन उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो होगी टाइप 2 एरर। क्लियर?
अगर यहाँ पे वैल्यू 0.05 से कम होती वैल्यू, तो हम क्या कहते हैं, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना था, लेकिन नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करने की बजाय एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो टाइप 2 एरर हो गई। तो टाइप 1 एरर क्या होगी, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमारे केस में 0.05 से ज्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बजाय हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो टाइप 1 एरर होगी। क्लियर? ओके सर। बाकी मैंने वो लिंक भेजा था, उसमें पीपीटी में, उसमें देखे लिंक पे खोल के, उस पे वीडियो थे कुछ, आपने देखे वो? जो मैंने पीपीटी भेजी थी लास्ट टाइम, उसमें मैंने कुछ रिसोर्सेज दिए थे, लिंक दिए थे लास्ट में, कुछ यूट्यूब के भी दिए थे, वो आपने देखे, चेक किए? नो सर, सॉरी सर, अभी देख लेते हैं। कोई नहीं, देख लेना। आप एसपीएस सभी ने इंस्टॉल कर लिया? देखो, इसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूछ लेना, फिर तभी तो आएगा। किया था हमने, फिर मैंने इंस्टॉल किया था, बट इसमें सर वर्जन ना मतलब पेड वाला है। ओके, कोई नहीं, ट्रायल एक बार यूज कर लो उसको, ट्रायल भी मिलता है कुछ दिनों के लिए। फिर बाकी ट्रायल कहीं फिर से जो क्रैक वर्जन है, कहीं से डलवा लो, आसपास कोई कंप्यूटर शॉप है या किसी के पास जाके डलवा लो। ओके, एनीथिंग एल्स? सर एक जो सैंपल साइज कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो भी इन डिटेल बता देंगे। सर ने बताया था, बट सर उस टाइम पे उन्होंने बहुत शॉर्ट में बता दिया था। ओके, ठीक है। बिकॉज लाइक हम भी जब अपना कोई टॉपिक लेंगे ये ना, then ये जो 4th यूनिट में मैं फोकस कर रहा हूँ कि 3rd यूनिट, आई होप द 3 यूनिट तक आपको सैंपल सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो आई जस्ट फॉरवर्ड टू द प्रैक्टिकल पार्ट ना। अभी पीछे की चीजें मैं बता दूंगा बाय द, बट पीछे के जो टीचर थे, उन्होंने, उनसे नहीं समझ में आया तो उन्होंने पूछना था ना आपको दोबारा उनसे। नहीं सर, वो उनकी लास्ट क्लास थी एंड का कोई सब्स्टिट्यूट भी है सर अवेलेबल, जैसे फ्री वर्जन नहीं करेंगे ना। क्या सर, इस ऐप का सब्स्टिट्यूट भी है सर, कोई फ्री वर्जन? ना, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट एक्सेल है, फिर एक्सेल में आपको कमांड्स आनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होते हैं। उसमें फॉर्मूले लगाने आने चाहिए आपको, सारे फॉर्मूले, अनोवा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सर ये एसपीएसएस वाला काम सारा एक्सेल में हो सकता है? एक्सेल में हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए सारे के सारे एक्सेल के, और यहाँ पे सारे फॉर्मूले बनाए हैं, बैक एंड में अपना प्रोसेस करता है ये।
SPSS और उसमें एक्सेल में आपको सारे फॉर्मूले कमांड देनी पड़ेगी, राइट करना पड़ेगा सारा का सारा फॉर्मूला आपको उसमें, जैसे अनोवा का जो भी है विद इन द वेरिएबल बिटवीन द वेरिएबल, या जो डिवाइड करके सम ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय f करते हैं, फिर वो वैल्यू निकल के आती है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, तब हम एक्सेल में इसको फीड कर सकते हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी उसमें। मान लो आपके पास 1000 का डाटा है, 1000 का कैलकुलेशन करना, उसको फॉर्मूला लगाना, आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। सर ये काफी सबसे हैवी best- मैंने ना सॉफ्टवेयर है, काफी हाँ। हैंग हो गया सिस्टम ना, काफी हैवी सॉफ्टवेयर है ये। हाँ वो ये हैवी सही है, इसके लिए कम से कम आपको 8 GB रैम तो कम से कम सिस्टम में चाहिए, SSD चाहिए, और आपका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए सिस्टम का। मेरा सिस्टम ही बंद हो गया मेरा तो। हाँ, तो इसमें थोड़ा SSD है होनी चाहिए थोड़ा सा, और 4 GB से 8 GB रैम, तो उसके बाद प्रोसेसर उसका अच्छा होना चाहिए, i5 प्रोसेसर कम से कम होना चाहिए इसका। क्योंकि सर मैंने ना गूगल पे देखा था कि ये जो मतलब SPSS वर्जन है ना सर, ये मतलब काफी मतलब हार्श हो सकता है इस कंप्यूटर के लिए, मतलब अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज करें। नहीं, वो सिस्टम है, अगर आपका कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम आपको बहुत मतलब एक कॉन्फ़िगर्ड है बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेज में, तो उसमें हैंग होता ही है। इसके लिए तो ये रिक्वायरमेंट है उसकी, सिस्टम कम से कम 4 GB रैम तो हो, उसके साथ कोई मत चलाओ। बट वैसे रिक्वायर्ड कि 8 GB रैम हो तो आपका अच्छे से चलेगा। 8 GB रैम हो, कम से कम 512 GB SSD हो, और आपका i5 प्रोसेसर हो कम से कम, मतलब लेटेस्ट जो हो इसमें प्रोसेसर, तो उसमें ये अच्छे से चल जाता है। अपग्रेड करवा लो अपने लैपटॉप को थोड़ा बहुत, अगर 4 GB रैम है तो 4 GB और रैम डलवा लो। HDD डली हुई है तो उसकी जगह SSD डलवा लो उसके अंदर। नहीं सर, मैंने तो न्यू ही लिया था, मतलब उसकी है 8512 तो है। अच्छा, बस तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर, उसमें SPSS तो डाउनलोड हो गया था सर अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। बट वही सर जब डाउनलोड किया ना, फिर वो लाइसेंस मांग रहे थे, या हाँ तो लाइसेंस वही कह रहा था, ये इंस्टॉल ये कंप्लीटली इसको रिमूव कर देना जड़ से, और बाहर से क्रैक वर्जन कोई वैसे तो रिकमेंड नहीं करते, अलाउड नहीं है वैसे भी कि भाई हम ऐसे क्लास में बोलें कि आपको क्रैक वर्जन यूज करो, ये तो वो भी अलाउ नहीं कर। IBM वाले भी मतलब ये पूरा इलीगल होता है, बट फिर भी बहुत सारे यूज करते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है ये जो सॉफ्टवेयर है। तो यस सर अब तो इसके अरे बाद डॉक्टर अमोस आ गया, $99 ये तो पर मंथ है। SPSS। हाँ लगभग। तो ये देखो इसके बाद अमोस SPSS आ गया। अमोस SPSS है, ये आया था IBM SPSS, फिर IBM SPSS ने कोई सैम वगैरह स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग के लिए, फिर हमें अमोस SPSS जो है वो आ गया। उसके बाद फिर स्मार्ट PLS आ गया लेटेस्ट, आज के दिन स्मार्ट PLS, उसका लाइसेंस भी बहुत महंगा स्मार्ट PLS का। सर 1 साल की PhD फीस के बराबर है इसका। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए बेटर सर है भाई जैसे जो भी है। करता हो सर, मिल सकता है क्या सर, जैसे ये? हाँ, जो कंप्यूटर शॉप पे मिल जाएगा, उनके पास क्रैक वर्जन होता है, या वो उस क्रैक क्रूक कर देते हैं, उनके पास मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर ये। यस सर, अगर उसका पासवर्ड लॉगिन मिल जाता है फिर तो हम उससे लॉगिन कर सकते हैं सर। पासवर्ड लॉगिन की जरूरत वो मांगेगा ही नहीं, वो क्रैक वर्जन में कुछ नहीं मांगता, इंस्टॉल करो सीधा बस, उसमें कुछ वो अपने आप करके दे देंगे क्रैक। नहीं तो सर कभी मैंने ना डाउनलोड किया था, तो ना एक बार कह रहे थे कि अगर आपको लाइसेंस लेना है ना, फिर उन्होंने सर कोई कोड भेजा था, फिर वो कोड डालते फिर वो कहते एक्सपायर हो गया कोड। अच्छा, ये कई फेक भी होती हैं, मतलब जैसे क्रैक वर्जन मिल जाते हैं। क्रैक वर्जन अगर उसमें थोड़ा सा आपको क्रैक करना तो उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ती हैं। बट चलो कभी आओ तो फिर मैं डाल दूंगा, कभी आओ तो इधर तो सिस्टम में मेरे से डलवा लेना। आप डाल देना। ठीक है। कहाँ आना पड़ेगा सर? भी कभी डिपार्टमेंट में आओ, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में इधर तो मिल लेना, मैं डाल दूंगा। पेन ड्राइव लेके ले आना। वैसे इसका स्टूडेंट वर्जन 14 डेज के लिए है सर, ट्रायल बेसिस पे। हाँ ट्रायल वही कह रहा हूँ, ट्रायल यूज कर सकते हो अगर देखना है तो, थोड़ा सीखना है तो। नहीं तो ये कहीं भी यहाँ पे लैब में डलवा, या किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाके, मतलब ऐसे मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी में आके लैब में, या जो भी है कंसर्न डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर लैब है वहां से डलवा सकते हो। ओके सर।
सर जब Okay. एमएसटी देने आएंगे कब दिलवा लेंगे या अभी अर्जेंट है मतलब? नहीं देखो, साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए है, अभी फिर आप नोट करते हो जो मैं पढ़ाता हूँ, क्या क्या यूज करना है, हमें कौन से ऑप्शन में जाना है, नोट करते हैं इन चीजों को? सर कभी कभी तो हो जाता है, कभी नहीं हो पाता नोट। आप ऐसे ना नोट कर रहे ना सिस्टम प्रैक्टिस है, फिर ऐसे तो भूल जाओगे, दोबारा थोड़ी करवाने का टाइम होगा फिर। सर नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे इसके, जैसे कि स्टेप्स वगैरह जैसे पता चल जाए कि कैसे कैसे करना है? देखो, एक हैंडबुक ऑफ एसपीएसएस आती है, एक बुक आती है, वो मैं नाम भूल गया ऑथर का, हैंडबुक ऑफ एसपीएसएस ऐसे एक नाम से आया, हैंडबुक ऑफ एसपीएसएस। उसमें सारा आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल। वो आप अमेजन पे देख लो, यहाँ से फ्लिपकार्ट पे कहीं से भी, जहाँ भी बुक मिले वो मंगवा लो, मतलब मेरे ख्याल से 450-500 रुपए की बुक है वो। उसमें सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा उसमें भी देख देख के आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसमें हमें कौन सा ऑप्शन किस चीज के लिए टिक करना है, कौन सा अनटिक करना है, तो हैंडबुक ऑफ एसपीएसएस के नाम से उसमें पूरा प्रैक्टिकल मिल जाएगा आपको, डिटेल सारी। थैंक यू सर। सर एग्जाम रिलेटेड क्या पूछेंगे एग्जाम में? एग्जाम में तो कुछ नहीं पता भाई, हाउ व्हेन यू व्हाट इन व्हाट assumption व्हाट कंडीशंस यू कैन अप्लाई दिस टेस्ट, किस कंडीशन में कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, क्यों करोगे, इस टेस्ट का क्या मतलब है, इस तरह से ही पूछेंगे वो। सर वैसे ये फाइनल एग्जाम में ही पूछा जाएगा। हाँ, जैसे एमएसटी तो आपकी जैसे जो पहला एमएसटी होगा फर्स्ट और सेकंड यूनिट का होगा ना, जो सेकंड जो एमएसटी होगा वो थर्ड और फोर्थ यूनिट का होगा आपका। तो अभी ये कब है आपका फर्स्ट एमएससी कब होगा, पता है कुछ? नो सर, कह रहे थे जनवरी एंड में होगा या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में, अभी तक तो डेट आई नहीं। ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो आपको पढ़ ली होगी, उसमें प्रिपरेशन कर लेना, और थर्ड जो फोर्थ यूनिट आएगी उसमें ज्यादातर आपका सैम्पलिंग से रिलेटेड पूछ लेंगे, कुछ आपका रिसर्च डिजाइन से पूछ लेंगे रिलेटेड, कुछ आपका सैम्पलिंग मेथड्स हैं, या जो डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं ये इससे रिलेटेड पूछ लेंगे, या फिर आपका कौन सा टूल एसपीएसएस में कैसे अप्लाई करोगे, क्या इसका प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसका बताओ। तो उस केस में आप लिख सकते हो इसमें, अगर स्टेप्स आपको आते हैं तो अच्छे से। तो इसलिए वो हैंडबुक ऑफ एसपीएसएस है, वो बेटर है। बाकी देखो, अगर वो एक्सेसिबल होगा कोई ई बुक वगैरह उसी की, तो अगर मेरे को मिल गई तो मैं भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, नाउ यू कैन लीव। थैंक यू सर। थैंक यू।